student of class 8. We are going to study the literature, means the English one. Our first lesson is road less taken. So just we start. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the one you did do. So throw off all the bowlings, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sail, explore dream and desire. मार्क ट्वेन, आपको मैं हिंदी में बताऊं, मार्क ट्वेन was born on 13th November 1835 in Florida, Missouri, United States, and his life came to an end on 21st of April 1910. He was nominated Oidie Award of Excellence in Design, and he was a great writer in the field of explorer. ये पैरा का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अब से 20 साल बाद या कई, जब आप अपने लाइफ का फर्स्ट जो स्टेज चल रहा है अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, आप थर्ड स्टेज में जो स्टेज के आप क्रॉस आ रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, आपके 20 साल बाद आप अपने द्वारा किए गए कर्मों से ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं उसको इस ढंग से करना है हमें, ताकि आने वाले समय में कोई भी समाज आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने, आपको इसका ऑप्शन, आपका जो फीडबैक फॉर्म है उसको मैं बताऊं कि एक्चुअली में what is the most disappointing things which we should do and how we can get remember forever and ever. Vasco da Gama, Portuguese explorer, as you know, the first European explorer to reach India, means at last when he reached India, the list name given to you means the explorers which has been given in front of you, some names. Why? वास्को डी गामा का ही नाम या और भी बहुत सारे नाम आपको नीचे दिए गए हैं। मार्क ट्वेन मीन्स द राइटर ने आपके सामने क्यों पेश किया? क्योंकि इससे हम समझ सके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब से 20 साल बाद या आने वाले समय में जो हम अपने काम को कर रहे हैं उसके द्वारा किए गए कर्मों से ज़्यादा हम निराश नहीं होंगे। तो देखिए इन लोगों ने क्या क्या किया। जैसे वास्को डी गामा, पोर्तुगीज, द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच इंडिया, ही रीच्ड इंडिया इन द 5th century, not in the 15th century, not in the 16th century, 15th century, not in the 16th century. French's dark English led the first English circumnavigations when the 16th century, not in the 17th century. Martin Lexens de Loyal, Spanish, he belongs from Spanish, the first European to conquer the world twice. 2 बार जिन्होंने अपने एक्सप्लोरेंस के रूप में जाना चाहा, वो किस सेंचुरी में किया? तो द राइट आंसर इज योर 16th century. Robert Gray, he was from America. He is an American. The person who led the first American circumnavigations. This is 4th syllable word, so pronounce clearly. He reached there. He completed his aim in 18th century. Adam Johann von Kronstein and Yuri Lex Russian, the person who led the first Russian circumnavigations in 19th century. Kay Cottee, Australian, the first woman to complete a solo non-stop circumnavigations in which century?
It is in Abelius Tommy, the first Indian to sail non-stop around the world, non-stop convents in outside assistance. Dilip Century में mother India's 21st complete solo same century में, that is our 21st century. It is just recent. The history was made on 21st May 2018. Abolition Tommy, North Indian was made on 21st non-stop around the world at INS North Goa outside assistance. Never seen Zika being Bahraini was received by the defense minister at the 8th century. INS was received by the defense minister. Now the history began of this story. History was made on 21st May 2018 at Varman in North Goa when INSB naval sink vessel Trani was received by the defense minister at the INS Indian Navy ship. The full form of INS is Indian Navy ship Mandvit Prati, led by Lieutenant Commander Vartika Joshi. INS BT Trani became the first Indian vessel with all the female crew of successful conquests the world. The expedition, named the Navika Sagar Pratikam, began in USA on 10 September 2017. The team of 6 women sailed for and P. Swati, Lieutenant S. Vijay Devi, Pal Gupta, हमारे पूरे विश्व को एक नॉलेज दिया। विश्व में सारे लोगों ने मिलकर एक जेनिथ से बॉटम कोई नहीं आता है, लेकिन बॉटम टू जेनिथ जाता है। इस पृष्ठभूमि के साथ लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, जो कि एक स्पीकर थी, और उनके साथ साथ क्रू ब्रेसर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जमाला, लेफ्टिनेंट कमांडर ऐश्वर्य बोडपति, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वामी, लेफ्टिनेंट कमांडर एस विजया देवी और लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता ने सफलतापूर्वक 254 दिवसीय यात्रा पूरी। काफ़ी उन लोगों को मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत सारी बाधाएं उनके साथ आई थी। ग्लोबल को परिचालन करना ये एक आसान बात नहीं है। ग्लोब को, पूरे ग्लोब मतलब पूरे विश्व को, अपनी सेलबोट INSV तारणी में सवार होकर महिलाएं 10 सितंबर 2017 को गोवा से बाहर निकली और 21 मई 2018 को 21,600 से अधिक समुद्र भूमि मूल पूरी करने के बाद ही वापस लौटे। यह उनका दृढ़ संकल्प था। दे वेर टेकन द ओथ दैट जस्ट आई विल कंप्लीट दिस। उनके कालिक 5 देशों के छूते हैं, भूमि मध्य रेखा के 2 बार पार करते हैं और 4 महाद्वीपों और 3 महासागरों में नौकायन करना ये कोई आसान बात नहीं है स्टूडेंट। इट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। नौसेना का स्टाफ के प्रमुख एडमिरल सुनील लंबा ने भारतीय नौसेना के नौकायान पोता तारिणी के सभी महिलाओं के चालक दल का स्वागत किया। उन्होंने युवाओं के लिए एक रोल मॉडल का, क्या ये जो लोगों ने वर्क दिया था, जो वर्क करके हम लोग के सामने फर्स्ट पेश किया, उसका नाम क्या दिया गया? रोल मॉडल का। किसके लिए? उन्हें युवाओं के लिए, नन्हे युवाओं के लिए, मीन्स दी टीनेजर्स हु इज टेकिंग just who are putting their step, you may call the first step of the human life. See, lots of circumstances all women team to carry forward the legacy, and the rest, as they say, is history.
इतिहास, हिस्ट्री का मतलब काफ़ी अलग होता है। हर दिन हर व्यक्ति कोई नया काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कुछ काम कर दिया तो एक इतिहास हो गया। जैसे कि आज हम लोग कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आवर कमिंग जनरेशन, हमारा जो भविष्य पढ़ने में आगे बच्चे आएंगे, उनके इतिहास के पन्नों में ये लिखा रहेगा कि कोविड-19 के महामारी में कितने लोग कैसे सफ़र किए और किन किन लोगों का कितना योगदान रहा। तो ये इतिहास बनेगा जिसका कोई एक रिटन प्रूफ होता है, जिसका एक विजुअल प्रूफ हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्कूल गए, बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत फील्ड में क्रिकेट में अच्छा खेल दिए या कोई ऐसा काम कर दिया जो आपका एक इतिहास बन गया। बिकॉज द हिस्ट्री कांट बी मेड इन 1 day और इन 1 second और फॉर अ नैनो सेकेंड। यू हैव टू डू ए लॉट्स ऑफ वर्क टू मेक अ हिस्ट्री and come into text. Investigation of this chapter means how did you get into the team? Means the narrator says कि I joined the Navy in 2011. I means the name become letter. I here we will take as a narrator, and was always keen on taking part in water, soap and religious training. 3 years later in 2014 when they called for volunteers for the yogas, and I thought, why didn't you try? Of the 500 women officers in the Navy, 30 of us volunteered. I was posted in Port Blair. When the call from the section came into 2015, after a week long selection process, I was among the 6 selected for this prestigious project. But to be honest, I had no clue about ocean sailing. In fact, in my initial days, I was petrified of even swimming in the sea. देखिए, नाविका सागर प्रक्रिया भारत की सभी महिला कर्मचारियों द्वारा विश्व की पहली प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना नेतृत्व बहुत सारे गुणों से पोषित करने के और हमारे कर्मियों के उद्देश्य से दृढ़ संकल्प हो चुके थे, और साहस इतनी थी इन लोगों के पास स्टूडेंट कि मैं कैसे बताऊं। देखो, इनके पास ये था कि वाई दी वुमेन कैनॉट कम अन टू इन दिस सच हजार्डस एंड ग्रेट सर्कमस्टांसेस। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। आप इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से कोई भी खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। कोई बहुत पढ़ने में तेज़ है, कोई बहुत ड्राइंग बनाने में तेज़ है, कोई बहुत अच्छा स्पीच देने में तेज़ है, कोई बहुत अच्छा से रूम सजाने में तेज़ है। हर किसी का एक अपना परफेक्ट एरिया है। नो वन इज़ इम्परफेक्ट। हाँ, लेकिन पार्टिकुलरली कोई एक ही एरिया है। जज हमें करना है कि हम किस एरिया में जाएं, और जज हमारे पेरेंट्स को करके देना है कि हम किस एरिया में परफेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ द बेस? आवर पेरेंट्स। डेफिनेटली, जैसे कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने जज किया कि नहीं, आप इस रास्ते में सही जाओगे, इसलिए आपके पेरेंट्स को आपको भी जज कराना होगा कि आप किस रास्ते में आप जाना चाह रहे हैं। तो वो उनका उद्देश्य दृढ़ संकल्प और साहस की भावना विकसित करने के रूप में ही साहस की भावना को बढ़ाने देने के लिए विश्वास करती थी, और वो लोग, उनके साथ जो भी ऑफिसर्स थे, वो लोग करेज देते थे, डिमोरलाइज नहीं करते थे। और नाविका सागर प्रक्रिया की जो चुनौती थी उनके सामने, वो एक रोमांचक, जिस तरीके से आप यूज़ करो, मतलब इंटेंशनली नहीं, प्रेशर नहीं लिया। जैसे कि आप एक क्रिकेट खेलते हैं तो कितने आज़ाद रहते हैं, लेकिन जब स्कूल में आना, वो भी एक ऐसा टीचर का पीरियड आना जिसमें देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंट, तो समझ जाइए कि वो घड़ी कटती नहीं है कि हम इसे कैसे कटाएं। तो रोमांच की भावना से इस दर्शन के अनुरूप की गई थी, और ये बात हमारे नेवी के जो वो सुनील लंबा आगे चल के आएंगे, जो एक बहुत सारे ट्रिकी हैं नेवी नौसेना के, उन्होंने ये सारी चीज़ बताई।
तो ये डिमोरलाइजेशन की बात होगी। आपको खुद समझना होगा कि एक समुद्र तट पे जहाँ दूर दूर तक एक पंछी तक नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट, सिमिलरली इसीलिए निश्चित रूप से शुरुआत में चुनौतियां जो उन लोगों के लिए थी बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छी योजना और योजनाओं के साथ और इनमें बहुत मेहनत भी की गई थी बनाने के लिए। हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएंगे और रियली उन लोगों ने कर पाया, कर दिया। यह भूमि पर वापसी करने के लिए बहुत संतोषजनक भगवान भावना किसकी जरूरत है? भावनाओं की जरूरत है। और जहां पूरा देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और शुभकामनाओं के साथ आपका समर्थन के लिए वो तैयार था, वहां तो एकदम ये करेज जो है हमारा चेस्ट बलून की तरह फैल जाएगा कि मैं जो काम करने के लिए निकला हूं उसके लिए कितने लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भावनाओं के साथ, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक इस चुनौती को पार किया है। कितनी कठिन थी यात्रा और प्रतीक्षा कर रहे थे सारे लोग शुभकामनाओं के साथ। समर्थन करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। कौन? हमारे एंटी, लेकिन हमारे ये जो फीमेल योद्धा है, नारी, जंग को जीतकर हमारे युवा के सामने एक ऐसा मिसाल खड़ा किया कि टीम के अनुसार INS भी तिराड़ी सेलबेट को कोई और नहीं 7वें सदस्य हैं ये जी, कैप्टन डॉनी, द फर्स्ट इंडियन टू बी कॉमर्स एंड ही टॉट अस एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एक्सपीरियंस था इनके पास। From navigation signals to study for the stars, we didn't eat, but the best thing he told us was that the sea knows no gender, so we had better learn everything we want. सही बात है। कार्य आप कर रहे हो, मेल कर रहा है, फीमेल कर रहा है, सिंगुलर कर रहा है, प्लुरल कर रहा है, कार्य को करके देना है। उसे नहीं पता है कि आप औरत हो कि आदमी हो, मेल हो कि फीमेल हो। किसको? समुद्र को। टीम के अनुसार INS भी तिरानी सेलबेट कोई और नहीं 7वें सदस्य हैं इस 6 के बाद। और नाव जिसे तारा ताड़नी मंदिर गंजम जिला उड़ीसा के पास स्थित है, याद रखिएगा इस चीज को। तारा तारणी मंदिर कहाँ है? गंजम जिला जो उड़ीसा के पास है। भारतीय नौसेना की दूसरी सेलबेट है ये। ताड़नी हमारी 7वीं टीम की सदस्य हैं और वह सिर्फ एक नाव नहीं है बल्कि हमारा साथी है। कौन है? वो 6 के बाद वो नाव का जो जिसमें वो लोग ये काम करने निकले थे, INS भी तारणी उसका नाम है। स्विमर, सेलर्स जिस नाव में बैठे थे उसका 7वां सदस्य माना। क्या आप मानते हैं? आप तो कहते कि कैसे आए हैं सर, हम तो अकेले आए। अरे अकेले नहीं, साइकिल आपका साथ नहीं दिया रहता तो आप नहीं आए रहते स्कूल। बस आपका साथ नहीं दिया रहता तो आप बस में 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, लेकिन बस ड्राइवर सबके साथ साथ जोड़ने के साथ एक बस भी आपका सदस्य जब मानेंगे आपका मंजिल कंप्लीट होगा। तो तारिणी हमारी 7वीं टीम की सदस्य है। वह सिर्फ एक नाव नहीं है बल्कि हमारा साथी है और वहाँ कह रहा है कि आप नाव की देखभाल करें और यह आपकी देखभाल करना दायित्व है। तो वही है जो हमने अपनी यात्रा के दौरान अनुभव किया। ऐसा मैं नहीं, ये 6 लोग जो